Officially, good morning to all of you guys. Myself, Chandan Kumar. Today we are going to learn chapter 1.4. Have you thought of verb have? Have you ever thought about the verbs where is the use of have in English grammars? Okay. Today we learn about to use to have. Today we will learn the use of have in our chapter 1.4. Before we are going to learn, first analyze it the chapter's name. Analyze. Have you thoughts of the verbs? What is it? I have just told you about analysis. We have to analyze in sentence, clause, or phrase. Among them, what is this? Have you thoughts of the verbs? For sentence, I have told you it is the grouping of words which gives the complete sense is known as sentence, and it consists of subject, verb, objects, and complements. Okay. For clause, I have told you that it is the grouping of words which gives some meanings, not complete meanings, only some meanings, and it consists of subject, verb, maybe objects or complements. Okay, guys. And third one is phrase. It is the group of words which gives meanings, not some sense, only it gives meaning. For example, some words gives meanings like that. It also gives meaning. If I say table, table means maze. It is the meaning of the word table in English. Okay, such that in phrases here it is the grouping of words 2, 3, or maybe 4, and it gives some meanings. On the tables, if I say on the tables, any table per, so it is the grouping of words 2, on, and second one is the, and third one is table. It is the phrase. Okay, guys, it only gives the meanings, not complete sense. That's why we call it phrase. Here we see have you thoughts of the verb have? Okay, what is this? Have is helping verb, auxiliary verbs. You is subject. Thought is main verb. On of the verb is complement. Have is complements. Okay, it gives the complete sense. Therefore, it is a sentence. Okay, guys. Now, again, we are going to. I have told you in the last lectures about the figure of speech, and I have told you three types of figure of speech. Okay, you have to say what types of figure of speech it is. It is a figure of speech of interrogations. In interrogations, I have told you that the questions may be asked, question is asked, but we don't have answers. Okay, it's only motive to attract the people towards the questions, okay, towards the fact. Therefore, it is the parts of interrogations of figure of speech. Is it clear, guys? Now come to the use of have. Where we use have. Now we start here. Have indicates possessions or ownership of something. We use have for ownership or possessions. Have का हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे? जहां पर हम लोगों को ऑनरशिप दिखाना हो या फिर पोजीशंस दिखाना हो कि मेरे पास है, यानी किसी के पास है वो रख सकता है, उनको दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से माई फ्रेंड हैज अ पेट कैट, यदि मैं बोल रहा हूँ कि मेरे दोस्त के पास क्या है? एक पालतू बिल्ली है, पेट कैट. तो ये क्या कर रहा है? किनको शो कर रहा है? ये पोजीशन को शो कर रहा है कि मेरे फ्रेंड जो है वो पेट कैट को क्या है? रखने में सक्षम है, पोजीशन कर रहा है, पोजिटिव है फॉर कैट. ओके, now come to the example, second example. Do you have a cycle? It is also a position. So कि मेरे पास क्या है? क्या तुम्हारे पास साइकिल्स है? तुम्हारे पास क्षमता है साइकिल रखने का, एबिलिटी. इट ओनली शो पोजिशंस. ओके, our school has 6 computer. What it show here? Here it shows the ownership. 6 कंप्यूटर है हमारे स्कूल में, लेकिन ऑनरशिप किनके पास है? वो स्कूल के पास है. क्लियर है? इट इज द ओनरशिप, इट रिप्रेजेंट्स ओनरशिप. Where we use have to show ownerships and something possessions. Ownership and possessions like to be same.
किसी किसी कंडीशन में जो है पोजीशन और ओनरशिप जो है क्या है तुम्हारा सेम है। जिस प्रकार से यदि मैं बोलूँगा आई हैव अ साइकिल, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या है साइकिल्स है, ये मेरा पोजीशंस को भी दिखा रहा है, और वो साइकिल जब मेरे पास है तो उनको मैं क्या करूँगा ऑनर भी करूँगा, तो ऑनरशिप को भी दिखा रहा है। तो हम बोल सकते हैं ऑनरशिप और पोजीशन जो है बहुत से कंडीशंस में क्या होते हैं सेम होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस में सेम नहीं होते हैं। जब हम लोग क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है उनके पास साइकिल्स हो लेकिन वो उनका साइकिल्स नहीं हो। इज इट क्लियर गाइस? नाउ कम टू द नेक्स्ट, where we use have is used to indicates relationships। जब हम लोगों को रिलेशंस दिखाना हो तो वहां भी हम लोग किनका यूज करते हैं हैव का यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि मेरा एक भाई है तो हम क्या बोलेंगे वहां पे हम पोजीशन शो करने के लिए रिलेशन शो करने के लिए क्या यूज करेंगे हैव का यूज करेंगे, ये या हैव का यूज करेंगे। ओके, तो आई विल से आई हैव अ ब्रदर। ओके, इट शोज द रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू सिस्टर्स, मेरे को दो बहनें हैं, तो ये क्या कर रहा है रिलेशनशिप कर रहा है किनका ब्रदर एंड सिस्टर का। ओके, दैट्स व्हाई यूज हैव हेयर। द कपल डू नॉट हैव चिल्ड्रंस, हेयर भी शो हैव हेयर shows the relationship between parents and children। ओके गाइज, यहाँ पे जो है सेकेंड वाले सेंटेंस में हैव जो है वो किनको रिप्रेजेंट कर रहा है पेरेंट्स, और बच्चे का रिलेशन शो कर रहा है कि पेरेंट्स के पास क्या है एक कपल है, उस कपल के पास क्या नहीं है बच्चे नहीं है। नाउ कम टू द थर्ड, वेयर वी यूज हैव, वी आल्सो यूज हैव टू रेफर टू इवेंट्स एक्टिविटीज और एक्सपीरियंसेस। हैव का यूज हम लोग और कहाँ करेंगे, कोई इवेंट्स हो, कोई पार्टी हो, या फिर कोई काम हम लोग करने जा रहे हैं कार्य हो, या फिर कोई एक्सपीरियंस हो जो हम लोगों ने पहले कर किया है और उस एक्सपीरियंस को साझा कर रहे हैं किसी के साथ, तो वहां भी हम लोग क्या करेंगे हैव का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स आई एम गोइंग टू हैव अ बाथ इन द रिवर, मैं नदी में नहाने जा रहा हूँ, तो ये क्या है हमारा इवेंट्स है, एक्टिविटीज है और एक्सपीरियंस है। ये हमारा एक्टिविटीज है, हम लोग काम करने जा रहे हैं, कौन सा काम करने जा रहे हैं नहाने के लिए जा रहे हैं, कहाँ पर रिवर में। ये हमारा एक्टिविटीज है, इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे हैव का यूज करेंगे। इज इट क्लियर? If anyone gets any problems, just tell me guys. Okay, here you use have, it represents only the activities। what activities? have to bath, बात क्या एक्टिविटीज है जिनको हम लोग क्या बोलते हैं वर्क भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड एग्जांपल्स, लेट अस हैव अ पार्टी फॉर योर बर्थडे। हम लोगों को क्या करना चाहिए तुम्हारा बर्थडे के लिए पार्टी करना चाहिए, या फिर पार्टी दो हम लोगों को, तुम पार्टी दो तुम अपने बर्थडे के लिए। यहाँ पे क्या हो गया पार्टी जो है किनको रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किनको रिप्रेजेंट कर रहा है इवेंट्स को, तो इसलिए हम लोग क्या यूज करेंगे हैव यूज करेंगे। या फिर इवेंट्स मैंने बताया इवेंट्स के पहले भी हम लोग क्या यूज करते हैं हैव यूज करते हैं, या फिर इवेंट्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं हैव यूज करते हैं। क्लियर है? नाउ थर्ड एग्जांपल इज हियर, द क्लास हैज a short break at 11 am। ओके, here has a short break। okay, what has represent here events activities or experiences? what it represents here events and experiences both। it is because of for day class has given break at 11 am। पर डे जो है क्लास को क्या दिया जाता है 11 am में ब्रेक दिया जाता है, तो ये क्या हो गया एक्सपीरियंस हो गया, क्योंकि ये काम पर डे किया जाता है इसलिए इनको क्या बोलेंगे हम लोग एक्सपीरियंस बोलेंगे। और जहाँ भी एक्सपीरियंस के लिए भी हम लोग क्या यूज कर सकते हैं हैव या हैज का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बोथ आर सेम। हैव इज ऑल्सो यूज टू रेफर टू अ मेडिकल फिजिकल कंडीशंस। हैव और हैज का यूज, हैव को हम लोग और कहाँ पे यूज करते हैं मेडिकल कंडीशंस हो फिजिकल कंडीशंस हो किसी का कंडीशंस बताना हो तो वहां भी हम लोग किनका यूज कर सकते हैं हैव का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं बोलूँ कि मैं अपना फिजिकल कंडीशन बताना चाहता हूँ, यानी कि मैं कैसा हूँ, तो बोल सकता हूँ आई हैव अ गुड हेल्थ। तो मैंने हैव का यूज किया किन के लिए अपना फिजिकल कंडीशन को शो करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा एग्जाम्पल्स हो गए किनका हैव का यूज हम लोग क्या कर सकते हैं फिजिकल कंडीशन में भी कर सकते हैं। जिससे फॉर एग्जाम्पल्स आई हैव ए हेडेक,
हमें क्या है, सर में दर्द है, तो क्या किया मैंने, फिजिकल कंडीशंस, अपना बॉडी का फिजिकल कंडीशंस दिखाया, और कंडीशंस के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, हैव का यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल से है, ही हैज ए कोल्ड, उनका फिजिकल कंडीशंस क्या है, तबीयत उनकी खराब है, उनको ठंड लगी हुई है, तो उनके लिए भी मैंने क्या यूज किया, हैज का यूज किया। नाउ कम टू द नेक्स्ट गाइस, नाउ नो यूज ऑफ हैव, कहां पर हम लोग हैव का यूज नहीं करेंगे, वो देखते हैं। Where have you used as a main verb, it is always used in the simple present or past. The present continuous form is not used in such cases. Okay, देखो हम लोग जो है हैव का यूज कहाँ पे नहीं कर सकते, जब हैव को मेन वर्ब के जैसा यूज करेंगे, यानी कि सिंगल वर्ब हो, क्लियर है, कोई भी सेंटेंस हम लिख रहे हैं और उस सेंटेंस में हैव जो है मेन वर्ब है, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं करते हैं, मेन वर्ब जब हैव रहेगा तो हैव को हम लोग कंटिन्यूस में नहीं लिखेंगे। कंटिन्यूस का मतलब क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी। मैं ये तुम लोग को क्लासेस में बताया बहुत बार, हैव V1 प्लस आईएनजी ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो तुम्हारा, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, कंटिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे मैंने बोला हेल्पिंग, वर्किंग, ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारे क्या होंगे तुम्हारे, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस हैव का क्या हो जाएगा, हैविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैविंग। तो हैविंग जो है हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, हैव का यूज हम लोग नहीं कर सकते हैं मेन फॉर्म में। ओके, लेकिन ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में हो तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल्स बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं। क्लियर है, प्रेजेंट में कर सकते हैं, पास्ट सिंपल में कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूस में हम लोग वर्ब प्लस आईएनजी का यूज नहीं करेंगे। तो एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल्स देखो, आई एम हैविंग अ बाइसाइकिल। एक बात बताओ, मेन वर्ब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, एम क्या है यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब है तुम्हारा, एम क्या है तुम्हारा यहाँ पे, एक्सुअलरी वर्ब है। हैव भी जो है क्या है, वो तुम्हारा मेन वर्ब है। हैव क्या है यहाँ पर, मेन वर्ब है। और मैंने क्या बताया कि मेन वर्ब के साथ हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, आईएनजी यूज नहीं करेंगे, V4 यूज नहीं करेंगे। क्लियर है, तो यहाँ पे लेकिन मैंने V4 यूज किया है, तो ये क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। क्लियर है, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई हैव अ बाइसाइकिल, नोट आई एम हैविंग अ बाइसाइकिल, इट इज अ रॉन्ग हेयर। ओके गाइस, now come to the second question examples. He is having a cold. Once again, main verb is have, main verb, main verb is has, have plus ing, having, but we can't use having. Okay, जब मेन वर्ब हो तो वहां पे मेन वर्ब के जैसा हैव वर्क करता हो तो वहां पे हम लोग आईएनजी यूज में नहीं करेंगे। क्लियर है, और इज जो है यहाँ पे तुम्हारा क्या है, एक्सुअलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब कोई नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम लोग हैव के साथ आईएनजी यूज नहीं करेंगे। नाउ कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, सो हियर वी कांट यूज हैव, सिमिलरली इट इज नॉट यूज्ड इन द नेगेटिव फॉर्म्स एज अ मेन वर्ब। और दूसरा कंडीशंस क्या है, कहाँ पर हम लोग हैव का यूज नहीं कर सकते, जब हम लोग, जब वर्ब क्या हो, हैव क्या हो तुम्हारा, मेन वर्ब हो, और मेन वर्ब को उस टाइम पे हम लोग नेगेटिव टर्म्स में यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, इफ आई से फॉर एग्जांपल्स देखो, ही हैज नॉट अ कार, ही हैजंट अ कार। क्लियर है, यहाँ पे मेन वर्ब क्या है तुम्हारा, हैज है, एक ही वर्ब है, और वो वर्ब क्या है तुम्हारा, हैज है। तो हैज क्या हो गया तुम्हारा, मेन वर्ब हो गया। तो मैंने क्या बोला कि मेन वर्ब के साथ हम लोग नोट का नेगेटिव टर्म्स हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया तुम्हारा, गलत हो गया। ही हैज नोट अ कार, ये नहीं लिख सकते हम लोग। क्लियर है, क्योंकि हैज क्या है तुम्हारा मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के साथ हम लोग नेगेटिव टर्म्स यूज नहीं कर सकते। सेकेंड टर्म्स देखो, आई हैवंट अ कोल्ड, हेयर इज वंस अगेन हैव इज मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हम लोग नेगेटिव टर्म्स यूज नहीं करेंगे, और ये क्या है हमारा, गलत है। नाउ कम टू द थर्ड। ओके, अभी देखो हम लोग तो क्या बोल देगा, मेन वर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे, लेकिन जब हम लोग को मान लो कि बताना हो कि आई हैव नोट ए कार, तो कैसे यूज करेंगे हम लोग, उनको कैसे बताएंगे सामने वाले को कि मेरे पास कार नहीं है।
क्योंकि पोजीशंस के लिए तो मैंने अभी तुमको बताया क्या यूज करते हैं, हम लोग हैव यूज करते हैं, लेकिन मुझे बताना है कि मेरे पास कार नहीं है, तो वहां भी क्या हो गया, पोजीशंस को शो करना है। तो देखो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, हैव से पहले कौन सा यूज कर लेते हैं, हम लोग डू यूज करते हैं। मैंने बताया था मैन वर्ब इन सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या यूज होता है, डू या डज। तो हम लोग हैव से पहले क्या यूज कर लेते हैं, डू यूज कर लेते हैं या फिर डज यूज कर लेते हैं, और उनके साथ नोट लगा देते हैं। क्लियर है, और बाद में हैव लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हैव को शो करते हैं नेगेटिव टर्म्स में। क्लियर है गाइस। टू इंडिकेट द नेगेटिव वी यूज द एक्सुअलरी डू along with द मैन वर्ब। मैन वर्ब के साथ, मैन वर्ब क्या है हमारा, है, हैव के साथ हम क्या यूज कर देंगे नेगेटिव टर्म्स के लिए, डू यूज करेंगे, और वहां पे डू या फिर डज यूज करेंगे, तो क्या हो जाएगा, डू नोट या फिर डज नोट हो जाएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास कार नहीं है, उनको कैसे बोलेंगे, मैंने बोला था आई हैव नॉट अ कार, वो क्या है, रॉन्ग है। उनको सही तरीके से कैसे बोलेंगे हम लोग, आई डू नॉट हैव अ कार। मैंने ही बताया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ही डजेंट, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है तुम्हारा, डज आता है, नो की ना कि डू आता है। तो इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ही डजेंट हैव अ कार। ये क्या है तुम्हारा, सही है। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट हैव अ कोल्ड। मैंने वहां पे बताया था आई हैव नॉट अ कोल्ड, वो क्या था हमारा, गलत था। उनके लिए हैव के पहले हम लोग यहाँ पे क्या लगा दिए, डू लगा दिए, और डू के साथ क्या लगा दिए, नोट लगा दिए। तो ये क्या है हमारा, सही है, आई डू नॉट हैव अ कोल्ड। इज इट क्लियर गाइस। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट इंग्लिश वर्कशॉप। अब देख लेते हैं, तुम्हारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, और एक्सरसाइज में देखते हैं क्या क्या करना है। Add your own sentence to those given in the passage to illustrate the use of have। तुमको क्या करना है, पैसेज में जो कुछ सेंटेंस दिए हुए थे उनको यूज करके तुमको खुद से अपना एक सेंटेंस बनाना है, और उनमें क्या करना है, हैव का यूज करना है। क्लियर है। कहाँ कहाँ पर यूज करना है वो तुमको दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है क्या, टू शो पोजिशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या करना है, तुमको पोजिशन शो करना है कि उस आदमी के पास है, कुछ रखता है, तो वो शो करने के लिए तुमको यूज करना है किनका, हैव का। चलो मैंने क्या यूज किया है वो देख लो। मैंने क्या यूज कर दिया यहाँ पे, आई हैव ए कार। पोजिशन को, मेरे पास क्या है, कार है, मैं कार रखता हूँ। ओके। सेकंड, राम हैज अ बुक। राम के पास क्या है, बुक है। एंड थर्ड वन इज गीता हैज अ बाइसाइकल्स। गीता के पास क्या, बाइसाइकल्स है। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन। टू इंडिकेट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप को इंडिकेट करने के लिए तुमको क्या यूज करना है, हैव का यूज करना है। तो मैंने क्या किया, आई हैव अ ब्रदर। मेरे पास क्या, एक भाई है, मेरा एक भाई है, तो मैंने हैव का यूज किया, आई हैव अ ब्रदर। सेकंड मैंने क्या किया, राम हैज अ टू डॉटर। राम के पास दो लड़कियां हैं, तो ये भी क्या कर रहा है, रिलेशनशिप शो कर रहा है राम और उनके डॉटर के बीच में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं, टू रेफर टू ईटिंग और ड्रिंकिंग। तुमको सी में क्या करना है, क्या रेफर करना है, हैव का यूज करना है, किन के लिए, वो किन को रिप्रेजेंट करता हूँ, खाने को रिप्रेजेंट करता हूँ या फिर पीने को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, हैव यू फूड, क्या तुमने भोजन लिया, हैव यू फूड। ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा ईटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड मैंने लिख दिया, आई हैव माई मील। मैंने अपना भोजन ले लिया, मैं ले लिया हूँ, तो ये किन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा ईटिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। थर्ड मैंने लिख दिया, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी। आप क्या लेना पसंद करोगे, टी और कॉफी। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा ड्रिंकिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ भी क्या हो गया, हम लोग हैव का यूज कर लिए। क्लियर है गाइस। ओके, नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, टू शो ऑनरशिप। तुमको इसमें अब चौथा में क्या दिखाना है, ऑनरशिप दिखाना है। ऑनरशिप के लिए हम लोग क्या यूज किए, पहला क्वेश्चन देखो क्या मैंने यूज किया, राम हैज ए कार। राम के पास क्या है, कार है। ये क्या दिखा रहा है, ऑनरशिप दिखा रहा है कि उन्होंने कार को खरीदा है। क्लियर है, ऑन कर रहा है। थर्ड वन, आई हैव अ बुलेट। मेरे पास क्या बुलेट है, मैं क्या कर रहा हूँ, बुलेट को ऑन कर रहा हूँ। यहाँ भी ऑनरशिप को शो कर रहा है। क्लियर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड क्वेश्चन नंबर 6, फिफ्थ, टू रेफर टू इवेंट्स एक्टिविटीज एंड एक्सपीरियंस। फिफ्थ में तुमको क्या करना है, इवेंट्स को रिप्रेजेंट करना है, एक्टिविटीज को रिप्रेजेंट करना है, और एक्सपीरियंस को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ हैव का यूज करके। तो मैंने क्या पहला यूज किया, डिड यू हैव अ गुड टाइम्स एट द वेडिंग्स। क्या आपने अच्छा समय बिताया वेडिंग में, शादी में, समारोह, शादी समारोह में क्या आपका अच्छा टाइम बीता। क्लियर है। ये यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, इवेंट्स के लिए
यूज किया क्या, हैव का। वेडिंग्स क्या है तुम्हारा इवेंट्स है, और वेडिंग इवेंट्स के लिए मैंने क्या यूज कर दिया, हैव। और हैव किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ कम टू द सेकंड एग्जांपल, आई हैव अ मीटिंग्स दिस इवनिंग। मीटिंग इज what meeting represents here, meeting represents here activities, okay, and for activities I have written here have. Come to the sixth, to refer to a physical conditions। फिजिकल कंडीशंस के लिए हम लोग को क्या यूज करना है, यहाँ पर हैव का यूज करना है। तो मैंने फिजिकल कंडीशंस के लिए क्या क्या यूज किया है, फर्स्ट लिखा है ग्रैंडफादर हैज अ हार्ट अटैक। ग्रैंडफादर को क्या है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ओके। सेकंड एग्जांपल्स मैंने लिखा राणा हैज ए गुड हेल्थ। राणा का हेल्थ कैसा है, अच्छा है। ये क्या फिजिकल कंडीशन से रिप्रेजेंट कर रहा है किनका, राणा का। एंड थर्ड एग्जांपल्स मैंने लिखा श्याम हैज ए ब्लड प्रेशर। और श्याम को कैसा बीमारी है, ब्लड प्रेशर का बीमारी है। क्लियर है, ये सारे किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम्हारा फिजिकल कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, विद द हेल्प ऑफ हैव या हैज। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ योर चैप्टर। लुक अप द फ्लोइंग वर्ब्स इन अ गुड डिक्शनरी, लिस्ट एट लीस्ट 20 different uses of each. You may include their use with different prepositions, adverb and in Adams। देखो तुमको क्या है, कुछ वर्ड्स दिए गए हैं नीचे, और तुमको क्या बोला है, उस वर्ड्स का तुमको कम से कम 20 यूज लिखना है, 20 यूज लिखना है। क्लियर है, क्या यूज करके तुमको लिखना है, तुम्हारा प्रीपोजिशंस होना चाहिए, डिफरेंट प्रीपोजिशंस, एडवर्ब और एडम्स को यूज करके क्या करो, उस वर्ब को 20 डिफरेंट उनका यूज बताओ। क्लियर है, तो चलो मैंने क्या लिखा, पहला वर्ड क्या है तुम्हारा, गो दिया हुआ है। गो के लिए मैंने क्या लिखा पहले, गो होम, गो डाउन, टाउन, गो देयर, गो अवे। क्लियर है, ये गो के लिए लिख दिया। फिर गो प्लस जिरेंट के लिए मैंने क्या लिखा, गो शॉपिंग, गो बॉलिंग, गो सीकिंग, गो कैंपिंग, गो डांसिंग, गो साइट सीइंग, गो रनिंग, गो हाइकिंग, गो जॉगिंग। क्लियर है गाइस, गो प्लस जिरेंट हो गया ये। और नेक्स्ट गो प्लस टू, ये क्या तुम्हारा वर्ब का फॉर्म है। इनके लिए मैंने क्या लिख दिया, गो टू वर्क, गो टू स्कूल, गो टू जेल, गो टू बेड। गो प्लस टू द, ओके, गो प्लस टू द के लिए मैंने क्या लिख दिया, गो टू द मूवीज, गो टू द बैंक, गो टू द पोस्ट ऑफिस, गो टू द हॉस्पिटल, गो टू द एयरपोर्ट, गो टू द ट्रेन स्टेशन। क्लियर है गाइस, ये टोटल तुम्हारे 20 हो गए। इसी प्रकार से तुम्हारे और कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, तुमको वो क्या करना है, ट्राई करना है, घर पर से बना के लाना है। क्लियर है, और ये चैप्टर को आज यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि कम टाइम होने के कारण समाप्त करना पड़ रहा है। एक ही क्वेश्चन बच गया, चार चार वर्ड दिए हुए हैं तुमको, उनका क्या लिखना है, 20 वर्ड्स लिखने हैं। क्लियर है, प्रीपोजिशन यूज करके, एडवर्ब यूज करके और जीरेंट्स यूज करके। ओके, ट्राई टू राइट डाउन द रिमेनिंग वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग क्लासेस एंड स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे सेफ।